at this video class, and we are at BPS Shikshan Sansthan, and we are going to solve some questions related to your chapter 2, that is powers and exponents. Powers and exponent. So in the previous video I have left some questions, and now in this video we will going to solve those questions one by one. And then there is a one question in your checkpoint. This is a quite a complicated questions, so we are going to solve this, and I hope on solving these questions all of the basic methods of laws and exponents, basic formulae will be clear, right? So now example 7 we are going to talk about. Find the value of m such that we have given 9 by 7 minus 3, 9 by 7 raised to power minus 7, 9 by 7 raised to power 5m. So we have to find out value of m. Now m is not on the base, m is on the power. So there is a variable in the power, there is a missing value in the power that we need to solve. Now this question is not of simple ट्रांसपोजिशन की हमने LHS को RHS में कन्वर्ट किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया. इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट वे. सो हमें क्या करना है, वी नीड टू मेक, सबसे पहले उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, जितना सिंप्लीफाई ये हो जाए. सो यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? वी हैव फर्स्ट लॉ, व्हेन बेस आर इक्वल बट पावर्स are different, so we add the power like this. So this becomes 9 by 7 minus 3 plus minus 7 equals to 9 by 7 5m. Now on more simplification it becomes minus 3 plus minus minus 7, 9 by 7 5m. So 9 by 7 minus 10 equals to 9 by 7 5m. अब you can see that we have LHS and RHS, and both at LHS and RHS we have same base, right? But powers are different, so we will write base is same, so comparing the powers. So हम बेस को ऐसे छोड़ देंगे, हम लिखेंगे माइनस 10 इक्वल्स टू 5m. पहले क्या करना है हमें, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए LHS RHS में बेस को इक्वल करेंगे, देन हम एक लाइन लिखेंगे बेस इज सेम, सो कंपेयरिंग द पावर्स. तो जब पावर्स को कंपेयर करेंगे तो हम बेस को हटा देंगे और सिर्फ पावर्स को लिख देंगे, राइट? अब m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये 5 जो इधर मल्टीप्लाई में है इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो हम इसको डिवाइड में लिख देंगे. m को मैं इधर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 5 डिवाइडेड इनटू 10, वैल्यू इज -2. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, एंड all of such questions in those questions we need to find a value missing from the power or exponent. All those questions will be solved by in this same manner, right? So moving on to next question, we have find the value of x such that such that 3 minus 1, 6 raised to minus 1 plus 9 raised to minus 1 plus 12 raised to minus 1 equals to 36 upon 25, right? Now सबसे पहला काम हम सिंप्लीफिकेशन में करते हैं पावर्स को पॉजिटिव करने का. तो पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हम लिखेंगे 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12, राइट? तो
जो 1/3 इनवर्स है वो 1/3 टू पावर 1 हो जाएगा। 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने लिखा इसको 1/3। यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट है दैट इज x टू पावर माइनस a इक्वल्स टू 1/x टू पावर a, या इट मीन्स 3 टू पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3। इस तरह से हमने ये सॉल्व किया है। ऑलराइट, 36/25 and now we going to take LCM. So LCM becomes 36. Now 3 goes to 36 12 time 12, 6 goes 6 time 6, 9 goes 4 time 4, 3 time 3, equals to 36/25. I need to check this question because I think I have missed some value. Right. So I have missed m or x. So here I need to put x and x. Right. So now next हम इनको ऐड करना है, तो 10 और 12 22 25 25/36 पावर रेज टू x इक्वल्स टू 36/25। अब आप देखो कि यहाँ पर बेस कितना है 25/36 और यहाँ पर बेस कितना है 36/25। बेस इक्वल करने के लिए या तो आपको इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ तो फिर अपने पास x है। अगर इसको अपन इन्वर्ट करते हैं आंसर फिर भी आएगा, बट लेट्स डू एट दिस। तो 25/36 जब इन्वर्ट करते हैं तो पावर माइनस की हो जाती है, तो यहाँ पर पहले 1 पावर थी, हमने इसको -1 लिख दिया। अब बेस आर इक्वल, सो comparing powers, x equals to -1, राइट। सो मेथड आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आपकी वर्कशीट में भी मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 9। बाय व्हाट नंबर शुड 3 - 1 2 be multiplied so that the product becomes -4 power -1। Alright, so example 9, let us assume that x should be multiplied, so let the number be x, right। so हम 3 इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से एंड our प्रोडक्ट becomes -4 -1, right। now x equals to -4 raised to power -1 upon 3 raised to power -1। now यहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंट है that is x to power a and y to power a, so x upon y equals to a। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं, तो our answer becomes -4/3 -1। so this is how we can solve this question. Now last question is quite complicated, so please pay some extra attention to this, like how we are going to solve this question. So question I am writing here is 5 into p to power raised to power -4 upon 53 into 1 into p raised to power -8, and there is a bracket, then multiply
32 upon, sorry, it is not 32, it is 3 raised to power 2. So 3 raised to power 2 upon 4, then raised to power, bracket raised to power minus 2 into 4 minus 4 into 3, 1 upon 3 raised to power minus 4 into 7 raised to power minus 4 upon 3 and 2 upon 3. So this is how our question, and we are going to solve this question step by step. First, in this bracket you can see P and P same base on division, but powers are different. So हम यहाँ पर हम अपना रूल्स अप्लाई करेंगे. 5 upon 15 इसको हम अलग लिख लेंगे इंटू P माइनस 4 माइनस 8, राइट. सो यहाँ पर हमने रूल लॉ अप्लाई किया है x टू पावर a अपॉन x टू पावर b इक्वल्स टू x टू पावर a माइनस b. दिस इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट विच इज यूज्ड हियर. नेक्स्ट, हम ये पावर सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि दूसरी जगह हमें बेस लिखने में दिक्कत ना हो. तो पावर ब्रैकेट पे है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 एंड माइनस 4, 2 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो माइनस 4 एंड 4 रेज टू पावर माइनस 2, देन 4 रेज टू पावर माइनस 4, 1 upon, now look at, if we look at here 3, this becomes x to power a into x to power 1, x to power 1. So base is equal, so we add the powers. So 3 raised to power minus 4 plus 1 यहाँ पे और यहाँ पे 1 पावर है. रिमेनिंग जो न्यूमरेटर है वो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस 4 इंटू 2. अब इनको कुछ हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 अपॉन 53 इंटू P माइनस 4 प्लस 8, राइट. माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं इंटू, अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू अपॉन में लिखी जा सकती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस प्लस 2, तो ये माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, राइट. यानी 1 plus 1 2 and 2 plus minus 4 equals to minus 2. Then 4 minus 4 and this can be written here minus 2. Then we have 7 minus 4 into 2. Next step में हम करेंगे 5 upon 53 into it becomes P4. Then अपॉन में है तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस 2 इंटू 4 रेज टू पावर माइनस 4 माइनस माइनस 2. यही रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, राइट. एंड 7 रेज टू पावर माइनस 4 एंड 2. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस स्टेप. 5 अपॉन 53 इंटू P4 इंटू 3 minus 4 plus 2 into 4 minus 4 plus 2 into 7 minus 4 into 2. And next step, 5 upon 53 P raised to power 4, 3 raised to power minus 2, minus 4 plus 2 हो जाएगा minus 2, 4 minus 2 हो जाएगा into 7 minus 4 हो जाएगा 2. ठीक है. अब देखो 3 और 5 P4 3 रेज टू पावर माइनस 2 और 7 जो है इनको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि और इनके जैसा कोई बेस हमारे पास है नहीं, तो इनको मैं एक जगह लिख देता हूँ. 5 अपॉन 53 P4 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 7 रेज टू पावर माइनस 4 एंड 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2 एंड ब्रैकेट माइनस 2 इंटू 2. ठीक है.
तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा 5/53 इंटू P4, ये पावर पॉजिटिव करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव करेंगे तो 7 अपॉन, मतलब ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे इंटू, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू -4 इंटू 2 रेस्ट, पावर नहीं है मतलब नहीं है मतलब 1 है यहाँ पर, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 रेस्ट टू पावर 1। आंसर हो जाएगा 5P4 अपॉन 53 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 रेस्ट टू पावर 4 एंड -4 + 1, -4 + 1 = -3, so answer is 2 रेस्ट टू पावर -3। सो इस माइनस को भी पॉजिटिव करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 5P4 3 रेस्ट टू पावर 2, 7 रेस्ट टू पावर 4 एंड 2 रेस्ट टू पावर 3। सो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का एक सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा, राइट। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं पावर्स को आगे, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। हमें जो समझना है वो ये कि हमें पावर्स को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको दोबारा देखें, एक दो बार सॉल्व करें, देन इट विल बी क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी सम साइंटिफिक नोटेशन, पावर्स को यूज करके साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म हम एक्सपोनेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।